نگار کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے یہ مہمان جو ہیں بیوروکریٹ ہیں, شاعر ہیں, مزاح نگار ہیں. آپ کی تالیوں میں اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گی ڈاکٹر محمد کلیم صاحب کو. شروع میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں. ویسے دفتر میں بیٹھے تو ہم حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کرا لیتے ہیں, لیکن کسی کو آسانا نا اتنا آسان نہیں ہے. تو کیونکہ میں سول سروس سے میرا تعلق ہے تو وہاں سے کچھ چیزیں جو میں دیکھتا ہوں, تجربے کرتا ہوں, تو وہی میں اپنی تحریر میں لے آتا ہوں. تو پہلا اقتباس ایک ہے لیڈیز آفیسرز میں سے میں نے نکالا ہے. لیڈیز آفیسر کی سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے دفتر تشریف لاتی ہیں, اگر شادی شدہ ہوں تو اپنے خاوند کے ساتھ لاتی ہیں, اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو بائی کا تحفہ ورثے میں دفتر والوں کو ضرور ملتا ہے. اس طرح ملازمین کو بہت فائدہ ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا ایک کے ساتھ ایک فری. اس طرح دو افسر ایک وقت میں دفتر پر قابض ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ملازمین کو سمجھ نہیں آتی اصل افسر کون ہے. مثل مشہور ہے دو ملاؤں میں مرغی حرام. ہم نے غور کیا ہے مرغے کا کام اذان دینا, لڑنا, دیوار پر چڑھنا اور عشق لڑانا ہے. ہم مرغے سے کافی مرعوب ہوئے ہیں. ایک مرغہ 10 مرغیوں کے ساتھ عشق لڑا سکتا ہے اور مطمئن رکھتا ہے. ہم نے ایک دن گنا کہ ایک دن میں مرغہ کتنی دفعہ عشق کرتا ہے, تو یقین کریں ہماری گنتی ختم ہو گئی لیکن مرغے کا دل نہیں بنا. اس کی عشق بازیاں دیکھ کر ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی مرغہ بن جائیں. یہ آپ دیکھیں, غور کریں. اچھا جی, یہ تھوڑا سا عورتوں کے اوپر ان کو شاپنگ کا کیا وہ چسکا ہوتا ہے, اس میں سے ایک مضمون ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ عورت آکسیجن کے سہارے نہیں بلکہ شاپنگ کے سہارے زندہ رہتی ہے. عورتوں کا بس چلے تو وہ ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بازار میں کھائیں. ویسے تو سنا ہے کہ عورت بہت نازک ہوتی ہے, مگر بازار کو دیکھتے ہی اس میں نہ جانے کہاں سے قوت بھر جاتی ہے کہ مرد بیچارہ پیچھے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے اور اس کی زبان بھی باہر آ جاتی ہے, لیکن عورت کی شاپنگ ختم نہیں ہوتی. پاکستانی مرد کا المیہ بھی سن لیں, عورت کی تو سن لیں. تو پاکستانی مرد کا المیہ یہ ہے وہ محبت کسی سے کرتا ہے, منگنی کسی اور سے, اور بیوی کسی تیسری عورت کو بنا کر آتا ہے. جام صاحب کہتے ہیں یہی وجہ ہے وہ کسی ایک کا بن کر رہ نہیں پاتا. شادی کے بعد ساری عمر محبوبہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے یاد کر کے آہیں بھرتا ہے. بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتا ہے, منگنی والی کو یاد کر کے بیوی کو تانے دینا نہیں بھولتا. کاش کہ وہ میری بیوی بن جاتی. اس پھوڑ بیوی سے جان چھوڑتی, مگر بیوی کو چھوڑتا بھی نہیں, اور اس میں سے درجن بھر بچے بھی پیدا کرتا ہے. حالانکہ اس کے دل میں محبت اپنی پرانی محبوبہ سے روشن رہتی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آج کی تقریب کے صدر جناب عطاء الحق قاسمی تشریف لا چکے ہیں. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی شام مزاح میں, کہ یہ شام آپ کے بغیر بالکل ادھوری رہتی اور کسی صورت بھی ہم لوگ اس اعتماد کے ساتھ آج کی تقریب کو انجام تک نہ پہنچا پاتے. ہمارے آج کے اگلے مہمان مزاح نگار 4 کتابوں کے مصنف ہیں, شاعر ہیں. جتنے سنجیدہ نظر آتے ہیں اتنے سنجیدہ ہرگز نہیں ہیں. آپ کی تالیوں میں علی رضا احمد صاحب. وائرل لفظ وائرل بذات خود زیادہ پرانا نہیں ہے, مگر یہ اب افواہ اور جھوٹ سے زیادہ تیزی سے پھیلنے میں سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے. اور جھوٹ تو اس کے پاؤں جیسا بھی نہیں جس کے اپنے پاؤں بھی نہیں ہوتے. لو جی, دوسری طرف دنیا میں جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی, سوشیالوجی اور میتھالوجی تبدیل ہو رہی ہے, محسوس ہوتا ہے کہ اب انہیں بھی پرانا ہونے میں دیر نہیں لگے گی, اور وہ بھی ان قریب ڈی وائرل ہو چکے ہوں گے. آج کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر پوسٹ فوری وائرل ہو رہی ہے, بلکہ ہر وہ خبر جس میں وہ مودی کو 6-7 بار نظروں سے گراتا ہے. مودی نے بھی اس کا سنیاسی حل نکال لیا ہے
प्रेसिडेंट ट्रंप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 7 तैयारों के डाउन होने का जिक्र करते हैं, मोदी फ़ौरन 7 अप पी कर दोबारा भारत की एयरफोर्स को अप कर देता है और फिर पूरी बीजेपी फ़िज़ाई हाज़मे का शिकार हो जाती है। वैसे हर अमरीकी सदर हर दौर में बड़ा ताकतवर होता है, भले वो चेयर पे हो या व्हील चेयर पे। तारीखी तौर पर 2 अमरीकी बड़े लाडले माने गए हैं, इनमें से एक निकी और दूसरे निक्सन। वैसे भी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन अमरीकी सदूर के लिए एक दरमियानी उंगली का भी काफ़ी समझा जाता है। एक फ्रांसीसी बच्ची अपने बाप से कहने लगी, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आपकी तरह फ्रांस की सदर बनूंगी। वो पलट कर कहने लगा, क्या तुम्हें अकल नहीं? क्या तुम वाकई पागल हो या तुम्हारा दिमाग चल गया है? बच्ची कहने लगी, क्या सदर बनने से पहले यही सलाहियतें दरकार हैं? आखिर में कलाम शीरी की चंद लाइनें, वो भी प्रधान हो गई होगी, आके मर्दान हो गई होगी, आज मलाई फिर नहीं आई, गाय हैरान हो गई होगी, ले लिए इसने फिर 100 में से 100, नकल आसान हो गई होगी, सुर भी चाहत ने वो लगाया है, ताल हैरान हो गई होगी, आपके तो निकल रहे हैं दांत, दर्द दंदान हो गई होगी। हमारे अगले मेहमान मज़ार निगार उस्ताद हैं, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज शेखुपुरा से वाबस्ता हैं। ख़ुसूसी तौर पर शेखुपुरा से तशरीफ़ लाए आपकी तालियों में डॉक्टर अकरम सरार। हमारी सियासत में वैसे ही काफ़ी तंज़ो मिज़ाज मौजूद होता है, तो एक हमारे सियासतदान गुज़रे हैं, उनके हवाले से एक हल्के फुल्के अंदाज की लिखी हुई एक तहरीर है, और वो सियासतदान चूँकि काफ़ी मुख्तलिफ थे आम सियासतदानों से, इसलिए वो यहाँ मेरे लिए मौजू भी बने। उन्वान है, साईं का है अंदाज़े बयां और, साहिबो साईं साईं होता है, वो सिंधु हो या के मकरानी। हमारे इधर पंजाब के देहातों में साईं उस मखलूक को कहते हैं जो बेज़रर हो और हाल मस्त हो। ताहम जिस साईं का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी बेज़रर और हाल मस्त है। जिस दिन उसने किसी अजदर या कजदर को ज़रर पहुंचाने की कोशिश की, उस दिन ना तो वो साईं के ओहदे पर बहाल रहेगा और ना उसका अपना कोई हाल रहेगा। लेकिन हमारे साईं ज़माना शनास हैं, 90 साल की उम्र में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं, क्योंकि जानते हैं इस उम्र में तो कोई घर में नहीं रखता, अगलों ने फिर इक़्तिदार में रखा हुआ है। साईं कायम अली शाह अपनी मिसाल आप हैं। साईं कोई हकीम नहीं, लेकिन उनका कोई भी फ़ैसला हिकमत से खाली नहीं होता। इन पर उनके महबूब साईं की गिरफ्त इतनी मजबूत है जिसकी वजह से वो आज तक किसी गिरफ्त में नहीं आ सके। साईं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों तो लगता है प्रेस वालों ने पकड़कर कॉन्फ्रेंस के लिए खड़ा किया हुआ है। साईं माइक पर आएँ तो पहले दाएं बाएं देखते हैं, जैसे वो चाह रहे हों कि ज़मीर की बात कर दी जाए, लेकिन उन्हें उनके इर्द गिर्द इस कदर पार्टी मौजूद होती है कि उन्हें हमेशा सरकारी सच बोलना पड़ता है। थैंक यू। हमारे अगले मज़ानिकार ख़ुसूसी तौर पर फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से वाबस्ता हैं, लफ्ज़ों से खेलते हैं, लफ्ज़ों से मज़ाक पैदा करते हैं। आपकी तवज्जो चाहिए, आप हर जुमला उनका एंजॉय करेंगे। आपकी तालियों में सैयद कमर बुखारी साहब। आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास मज़मून लेकर आया हूँ, और वो है हकीम इब्न बेतोता। इसका थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ। हकीम साहब के वालिद ग्रामी हकीम तोता फाल वाले थे। वो रूहानी इलाज फरमाया करते थे, तो इन्होंने रूहानी के साथ साथ जिस्मानी इलाज पे भी
दस्तरस हासिल की और ख़ुद को हकीम इब्न बेतोता कहलाना शुरू कर दिया। उनके एक पुराने मरीज़ ने उन्हें ख़त लिखा, क्योंकि वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके थे और उनसे फैज़याब होते रहे। उनके ख़त का इक़्तिबास, माय डियर हकीम इब्न बेतोदा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका दवाखाना हस्ब मामूल इन दिनों भरपूर रश ले रहा होगा, क्योंकि सर्दियों के इस मौसम में जब शादी ब्याह की तकरीबात ज़्यादा मुनक़द हो रही होती हैं तो फ़ितरी और गैर फ़ितरी तौर पर लोगों का रुझान हकीमों की तरफ इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि खाने पीने में बेएहतियाती के सबब फक्की वग़ैरह की हर शख्स को तलाश रहती है। आपकी वो ख़ास फक्की जिसे फक 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 कर लोगों का जी नहीं भरता, आपको याद होगा कि हमारा ख़ानदान आपके ख़ानदान के साथ देरीना मरासिम रखता है। आपके वालिद हकीम तोता फाल वाले मेरे वालिद के गहरे दोस्त थे। वो हमें बताया करते थे कि हकीम तोता फाल वाले रूहानी इलाज में अपना सानी नहीं रखते और मरीज़ों के मसाइल मौका पर जाकर ही हल कर दिया करते थे। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलते जब मैं अपनी शादी के दिन तय होने पर आपके पास आया था, क्योंकि उन दिनों ब्यूटी पार्लर और जल्दी इमराज के माहिरीन नहीं हुआ करते थे, लिहाजा हकीमों के पास वन विंडो की सहूलत दस्तयाब थी। आपने मेरी हालत से अंदाज़ा लगाकर मेरे लिए खुफिया खाने में पड़ी हुई दवाई की शीशी मुझे पकड़ाते हुए कहा था कि आपकी जुमला बीमारियों का हल इसमें मौजूद है। मैंने आपको तफसीलात बताने की कोशिश की थी कि मुझे दरअसल चेहरे पर दाने निकल आए हैं, लिहाजा मुझे दानों वाली क्रीम की ज़रूरत है, लेकिन आपको चूँकि बहरेपन की वजह से कम सुनाई देता है, इसलिए आपने दानों की बजाय नादानों वाली क्रीम दे दी थी। इस क्रीम के इस्तेमाल से मेरा चेहरा मज़ीद बिगड़ गया और उसमें सोजन आने लग गई। शादी के दिन करीब आन पहुँचे थे, लिहाजा मुझे इसी चेहरे के साथ ही अपने सर पे सेहरा सजाना पड़ा। आपको कम सुनाई देने की वजह से बाज़ औक़ात दिलचस्प सूरत हाल भी सामने आया करती है। मसलन मेरे 11 साला छोटे भाई को तो आप जानते ही होंगे, जिन दिनों उसकी दाढ़ निकलने में उसे तकलीफ़ हो रही थी और वो शदीद दर्द महसूस कर रहा था। मैंने उसे आपके पास ले जाकर कहा था कि हकीम साहब कोई दवा तजवीज़ करें, इसकी तो दाढ़ ही नहीं निकल रही। आपने कोई ऐसी दवाई दी कि 11 साला बच्चे की 3 दिन बाद दाढ़ी निकल आई। टीपू को लोगों ने 11 साल की उम्र में सूफ़ी कहना शुरू कर दिया था, बल्कि उस पर इसलिए भी एतमाद करना शुरू किया कि उन्होंने सुन रखा था कि सूफ़ी जो नाम है एतमाद का। हिकमत के साथ साथ आपकी दानिशवरी का भी कायल हूँ। आपको याद होगा कि एक बार मैंने आपको कहा था कि मेरा पट्ठा चढ़ गया है, तो आपने मेरा बाजू सीढ़ी के साथ कस कर बांध दिया था ताकि सीढ़ी के ज़रिए पट्ठा आसानी से नीचे उतर आए। सस्ते ज़माने में गर्म कपड़े ख़रीदने की सक्कत लोग नहीं रखते थे। आप उनको ऐसा माजून दिया करते थे कि सख्त सर्दी में भी उनका जिस्म महजून जैसा गर्म रहता था। मुझे वो अपना हमसाया कभी नहीं भूलता जो आपके मतब पर आपके साथ झगड़ा कर रहा था कि मैंने आपसे दवाई ली थी कि बेगम की छाइयाँ ख़त्म हो जाएं, मगर आपकी दवाई से बेगम की अच्छाइयाँ ख़त्म हो गई। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम कासमी साहब से दरख्वास्त करें कि हम सर से कुछ मज़ाक सुनना चाहेंगे, मैं मिर्ज़ा साहब को बुलाऊंगी कि वो स्टेज पे आएँ और अपने जज्बात का इजहार करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताद मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब का कि वो इस नौजवानी में हमारे पास तशरीफ़ लाए
کیونکہ ہم بزرگ لوگ ہیں, ہماری سوچیں بھی بزرگ ہیں, ہمارے جسم بھی بزرگ ہیں, ہمارے دماغ بھی بزرگ ہیں. عطاء اللہ قاسمی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کی سوچ بھی جوان ہے بلکہ نوجوان ہے, جن کا جسم بھی نوجوان ہے, جن کا دماغ بھی نوجوان ہے. اور ہم جب ان جیسے نوجوانوں کے پاس بیٹھتے ہیں یا جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو جوان محسوس کرتے ہیں. ادھر میرے علاوہ اور بھی کئی تنظیموں کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں. کرمانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے موڑ کھنڈا سے تشریف لائے. بھائی سب کا نام لینا ظاہر ہے وہ تو اب چونکہ میرے نام کے ساتھ بھی چیئرمین ہے اور وہ سمجھتے ہیں جس طرح محسن نقوی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے, یہ بھی اسی طرح کا چیئرمین ہے. لیکن میں نے تو ادھر آ کے کرسیاں بھی خود صاف کرنی ہوتی ہیں, فلیکس بھی لگانے ہوتے ہیں, تو تصویریں بھی کھینچنی ہوتی ہیں, مہمانوں کو بھی لے کے آنا ہوتا ہے. اور حال کی انتظامیہ کہہ رہی ہے آپ کس طرح کے چیئرمین ہیں, آپ تو صفائی خود ہی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں ادبی چیئرمین ہوں. تو 12 جی یہ تقریب ہم نے رکھنی تھی, ہفتے والے دن ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی. تو گل نخید اختر صاحب ہمارے محسن ہیں, استاد ہیں, سینئر ہیں, انہوں نے کہا کچھ مصروفیت ہے. تو ہم نے جو آڈینس ڈیسائیڈ کی ہفتے والے دن وہ پھر ساری ہم نے چینج کی. اور جب چینج ہو گئی تو پھر پہلے سب نے کہا آپ آئیں گے, تو رات سے میسج آنے شروع ہو گئے. شاید اسرائیل کو ہماری تقریب کا کوئی مسئلہ, کوئی کہہ رہا ہے میرا نانا فوت ہو گیا, کوئی نانی فوت ہو گئی. تو اس سے پھر آگے ہم نے کوشش کی کہ تاکہ ہماری آڈینس ہو جائے. میں بہت شکر گزار ہوں, قصور سے لوگ تشریف لائے, ننکانہ صاحب سے تشریف لائے. اور ویسے میں آج اتنا پریشان تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ بھی آج پوسٹ لگا دینی ہے کہ اس طرح کے کام سے نہ آج کے بعد توبہ. لیکن اب آپ نے پروگرام کامیاب کر دیا. انشاءاللہ اس طرح کی تقاریب اور بھی کریں گے, زور و شور سے کریں گے. بہت شکریہ. میں جناب گل نخید اختر صاحب کو اسٹیج مائک پہ بلاؤں گی. اسکرپٹ رائٹر ہیں, ان کے نام ہی ان کی پہچان ہے. آپ کی پرزور تالیوں میں گل نخید اختر صاحب. اور اگر آپ انہیں دوبارہ سننا چاہیں گے تو پھر ان کے وہ حفظ مراتب جہاں پر یہ فال کرتے ہیں وہاں پہ انہیں دوبارہ پھر بلا لیں گے. شکریہ ڈاکٹر عائشہ عظیم, شکریہ مرزا یاسین بیگ اور پاکستان رائٹرز کونسل کا شکریہ, جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب کا شکریہ. خواتین و حضرات, میں کچھ چیزیں سنانے لگا ہوں. جو نہیں ہنسے گا اللہ کرے وہ بخشا نہ جائے. میں پہلے بتا رہا ہوں, جس نے تالی نہ بجائی, جو نہ ہنسا, وہ میری دعا ہے وہ بخشا نہ جائے. بخشے گئے. ماحول ذرا بنائیے گا. آپ بھی کسی کو نہیں بخشتے. ہاں ڈاکٹر صاحب کمال. اگر آپ کسی کی گرل فرینڈ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں, اور اگر نہیں تو پھر وہ خوش قسمت ہے. میرا مشاہدہ ہے کہ گرل فرینڈ بنانے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بندہ بے شک ساری زندگی گھر میں کدو گوشت کھاتا رہے, لیکن جیسے ہی اس کی کوئی گرل فرینڈ بنتی ہے وہ اچانک پیزا کھانے لگتا ہے, کپڑے استری کرنے لگتا ہے, اور ہر چوتھے روز نہانے بھی لگتا ہے. یہی حال لڑکی کا بھی ہوتا ہے. آپ نے آج تک کسی ایسی گرل فرینڈ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا جس نے اپنے بوائے فرینڈ سے نان چھولے کھانے کی فرمائش کی. لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی فرمائش کی تو بیٹھے بٹھائے ڈی گریڈ ہو جائیں گی, لہٰذا یہ سٹارٹ ہی زنگر برگر سے لیتی ہیں. انہیں انگلش بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے. آپ کسی گرل فرینڈ سے پوچھیں کہ جانو تربوز کھاؤ گی, تو آگے سے حیرت کا اظہار کرتی ہیں. تربوز وہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے تربوز, تو حیرت سے کہیں گی کہ واٹر میلن کا ہونا, تربوز تو میں نے کبھی نہیں سنا. حالانکہ خدا گواہ ہے کہ ایسی لڑکیوں کے گھروں میں تربوز بھی نہیں کہا جاتا, بلکہ ابا جی گھر میں گھستے ہی کہتے ہیں کڑی الا پھڑ دوانا فریج رکھ. ایسی گرل فرینڈز ہمیشہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ وہ صرف آپ سے ہی بات کرتی ہیں, ورنہ ان کے پاس کسی کے لیے کوئی ٹائم نہیں. ایسے میں اگر آپ کبھی رات کے 2 بجے ان کو چیک کرنے کے لیے فون کریں تو اکثر کے فون سے یہی آواز آئے گی, آپ کا مطلوبہ نمبر پچھلے 1.5 گھنٹے سے مصروف ہے. اور اگر آپ بعد میں شکوہ کریں کہ اتنی رات کو کس سے بات ہو رہی تھی, تو اس کا جواب دینے کی بجائے رونی صورت بنا کر کہیں گی شکیل تم مجھ پر شک کر رہے ہو, اپنی گڑیا پر. اور شکیل صاحب اس جذباتی حملے سے کہاں محفوظ رہ سکتے ہیں, لہٰذا فوراً گھگیا کر کہتے ہیں کیسی بات کر رہی ہو جان, میں اپنے باپ پر تو شک کر سکتا ہوں, تم پر نہیں.
ख़वातीन व हज़रात, एक छोटी सी चीज़ है कासमी साहब की नज़र। एक महल्ले की दाई है जिसने अपने आप को डॉक्टराइन कहती है, डॉक्टर और अमूमन महलों में कहा जाता है। शकीला हमारे इलाके की दाई थी, लेकिन चूँकि पेचीदा अमराज मसलन नज़ला, खांसी और सर दर्द का इलाज भी कर लेती थी, लिहाजा मोहल्ले की सारी औरतें उसे डॉक्टराइन कहती थी। शकीला को चूँकि ख़ुद भी डॉक्टराइन कहलवाना पसंद था, आज अगर वो ज़िंदा होती तो ज़रूर फरमाइश करती कि जिस तरह एक फ़िल्म आई थी एक थी डायन, ऐसे ही एक फ़िल्म आनी चाहिए एक थी डॉक्टराइन। इलाज मुआवजे के अलावा शकीला ख़वातीन को दबाने और नाफ निकालने का काम भी करती थी। बराह करम दबाने से ये ना समझा जाए कि वो कोई गोरकन थी। डॉक्टराइन एक असली लेडी डॉक्टर बनना चाहती थी, इसके लिए उसने बहुत मेहनत की, खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस मुल्क में टैलेंट को जूते की नोक के नीचे लिखा जाता है। सो यही हाल शकीला का भी हुआ। उसने MBBS में दाखिला लेना चाहा तो महज इस छोटी और घटिया सी बात पर इनकार कर दिया गया कि वो अभी सिर्फ मिडिल पास है। मैं पूछना चाहता हूँ हुक्मरानों से, क्या मिडिल पास बंदे को डॉक्टर बनने का कोई हक नहीं? और फिर शकीला तो बड़ी टैलेंटेड डॉक्टर साबित हो सकती थी। ऐसी फक्की तैयार करती थी कि पत्थर हजम लोहा हजम। आज भी शकीला से अच्छी सर्जरी शायद ही कोई डॉक्टर कर सकता हो। मुझे याद है, शकीला अगर किसी के पाँव में शीशा चुभ जाता तो शकीला वो शीशा निकाल कर उस पर जख्म की राख लपेट देती। एंटीबायोटिक के लिए भी मोहल्ले का कोई बच्चा ही काम आता। ख़वातीन व हज़रात, किसी औरत के पैरों में दर्द होती तो शकीला खुशखबरी सुना देती कि कैंसर हो चुका है। इसके बाद वो स्टील की बड़ी सी बाल्टी में काफ़ी सारा नमक और गर्म पानी डालकर मज़कूरा खातून के पाँव 1 घंटे तक उसमें डालती और फिर लाल शरबत थमा देती। 2 दिन बाद ही मरीज़ा सजदा शुक्र बजा लाती कि कैंसर जड़ से ख़त्म हो गया। ख़वातीन व हज़रात, एक दिन मैंने देखा शकीला के पास एक खातून एक बच्चा लेकर आई और उसने कहा मेरा बच्चा अंगूठा चूसना नहीं छोड़ रहा, बड़ा हो गया 3 साल का, लेकिन अंगूठा चूसना नहीं छोड़ रहा। शकीला ने उसका पहली दफ़ा मैंने शकीला ने उस बच्चे का नफ्सियाती इलाज करते देखा। कुछ दिनों बाद मैंने जब देखा तो वो बच्चा अब अंगूठा नहीं चूस रहा था। मैंने पूछा शकीला इसका क्या इलाज किया है? शकीला ने बताया मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी निकट ढीली कर दी। दिमागी बीमारियों का इलाज भी शकीला पर ख़त्म था। किसी की यादाश्त कमज़ोर हो जाती तो शकीला उसे 1 की बजाय 2 बोतलें लाल शरबत की देती और ताकीद करती कि हर घंटे बाद 2 चम्मच पीने हैं। और मरीज़ की यादाश्त 4 घंटे बाद ही इतनी तेज़ हो जाती कि उसे बखूबी याद रहता कि उसने लाल शरबत वाली बोतल के करीब भी नहीं भटकना। महल्ले के सारे बुजुर्ग कहते थे कि शकीला के हाथ में बड़ी शिफा है। ख़वातीन व हज़रात, किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा रोता या तंग करता तो शकीला इसे थोड़ी सी अफीम चटा देती और बच्चा सारा दिन सोया रहता। मैं ख़वातीन व हज़रात यहाँ आने से पहले, चूँकि मेरी तो सारी ज़िंदगी इसी, मैं क्या कहूँ, इसी बकवास में गुजरी है कि जब मैं कोई कहीं जाऊँ तो लोगों को यही होता है कि मैं कोई खातून हूँ। आज भी जब मैं आया उज़ैर भाई, आज भी जब मैं आया तो वही काम हो गए। ठीक है, कुछ लोग बड़े मेरे पास आए, उन्होंने जब पता चला मैं हूँ गुल नौखेज़ अख्तर तो आधी से ज़्यादा ऑडियंस वापस चली गई। उसके लिए मैं मिर्ज़ा साहब से माजरत चाहता हूँ। मैं मुल्तान में होता था तो काफ़ी 30-35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे कॉलम अखबार में छपते थे, मुझे ख़त आते थे, मोबाइल का दौर नहीं था। तो कोई एक पिंडी के साहब थे, उन्हें लगा कि मैं लड़की हूँ, उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि क्या हमारी दोस्ती हो सकती है। अच्छा, मुझे क्या पता वो क्या समझ रहे हैं। मैंने लिखा, मैंने कहा हो सकती है। फिर उनके ख़त आने शुरू। अच्छा, इसमें कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं आ रहा, तो उनके ख़त आते गए मुझे। कॉलम बड़ा अच्छा था आज का, बड़ा अच्छा आप लिखते हैं, आपके कॉलम बड़े अच्छे थे, फ़लाँ तहरीर अच्छी है, ता है ती है, ये इत्तेफाक से ना उन्होंने लिखा ना मैंने उनके जवाब में लिखा। तो कोई 15-20 ख़त उनके आए, मुझसे ज़रा एक ख़त का जवाब देने में 2-4 दिन ताख़ीर हुई। तो उनका एक ख़त आया जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हालात कितने ख़तरनाक हो चुके हैं। उन्होंने लिखा तुम नखरे बहुत करती हो।
अच्छा मैं समझ गया, मैंने कहा इनको भी यही हुआ है जो बाकियों को होता है। तो मैंने रमज़ान के दिन थे, हम लोग शेव बढ़ा लेते थे और ईद के करीब शेव करते थे। शेव बड़ी हुई थी, अली अब्बास साहब, शेव मेरी बड़ी हुई थी। तो मैंने उसी आलम में एक तस्वीर बनवाई, पीछे अपना नाम लिखा, सिर्फ नाम लिखा और उनको मैंने भेज दी। अब दाढ़ी से उनका मुझे अर्जेंट मेल से जवाब आया जो मुझे क़यामत तक नहीं भूल सकता। उन्होंने लिखा, सूफी तेरा कख ना रवे, मैं तो मां भी राजी कर लिया। आयशा, उन्होंने जो बात सुनाई है ना, जी जी, उस पे मुझे अपना रूही कुंजाई याद आ गया। रूही कुंजाई बड़े ज़बरदस्त शायर थे, लेकिन सर नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मेरी आवाज़ जाहिर ही होगी। ये रखते रूही कुंजाई बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन वो रूही के हवाले से कई लोग उनको खातून समझते थे। हत्ता कि जिस दफ्तर में वो काम करते थे उनका असल नाम था अमर इलाई। क्या नाम था? अमर इलाई। अमर इलाई उनका असल नाम। तो फ़नून का ताज़ा शुमारा आया हुआ था, तो उसमें एक तरफ शहजाद अहमद की गज़ल छपी थी, उसके बराबर में रूही कुंजाई की गज़ल छपी थी। तो रूही कुंजाई का बॉस रूही को कहता है, रूही तेन पता ही करता ने कह कि कहता है जी रूही है ना, शहजाद अहमद ने पता ये बिल्कुल सच्चा बात है। और जहाँ तक मेरे अपने नाम का ताल्लुक है, ये बड़े लोगों को मुसीबत में डाल देता है। अब ज़ियाउल हक बड़े आराम से आप कह लेते हैं, उन्हें को है बल्कि, लेकिन अताउल हक कहते हुए ना अक्सर लोगों की जान जाती है। कोई अताउल्लाह कह देता है, कोई अता मोहम्मद कह देता है। वो मेरा यार था दिलदार भट्टी, तो एक दिन मैंने उसे कॉल की तो वो नहीं था, तो उसका एक जल्ला सा मुलाजिम था। मैं कि यार वो भट्टी साहब आना, उन्होंने कहना कि अताउल हक कासमी का फोन सी। अब मुझे पता था अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो कहते ये तो बिल्कुल ही बेचारान पढ़ता है। तो मैं पूछ लूँ, मैं क्या कहेगा? कहना जी मैं दसा कौन गजाला कासमी था फोन। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि भाई कोई और तो हो सकता है कि गजाला बीच में कहाँ से आ गई। अभी चंद दिनों की बात है, बैंक गया मैं, तो मेरा बेटा उमर वो मेरे पीछे था, तो मैं आगे गया। जब हम वापस गाड़ी में आके बैठे, कहता अबू ये जो दो गार्ड खड़े थे ना, उनमें से एक गार्ड दूसरे को कह रहा था कि जानना ना, उन्हें कहा नहीं मैं नहीं जानना। कहना कमाल है, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब। मैंने दफ्तर में एक खातून सेक्रेटरी के तौर पे रखी हुई थी। मैं ये बिल्कुल आपको हल्फिया में बयान दे रहा हूँ, मैं इसमें ना मजाक की कोई बात है ना कोई घड़ी है। मैंने बात 3 महीने बाद वो छोड़ के चली गई। वो कहती जी मैं तो समझा सी के अताउल्लाह ईसा खेलवी किसी तरह अताउल्लाह कासमी निकले। ये अक्सर होता है नामों के साथ। और बाद नाम को, हालांकि सच्ची गल है, इतने मुश्किल होते हैं नाम, कई नाम जी हमने भी सुने होंगे, आपने भी सुने होंगे, जैसे आयशा जी। आयशा अजीम तो हमारी बहुत प्यारी बहन है, और क्या कहते हैं इनका नाम तो बड़ा आसान नाम है। उन्हें तो मेरे दफ्तर के बारे में क्या कहा। आपकी पुरजोर तालियों में शाहिद जहीर सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजमून का उन्वान है प्रोफेसर अलफदीन चिराग और घंटाघर।
एक नॉस्टैल्जिया। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। बचपन के बाद अक्सर लोगों को ये नगमा और बचपन हसीन लगने लगते हैं। इससे पहले तो फुर्सत ही नहीं मिलती। बचपन हसीन ना भी हो तो रंगीन लगता है। हमारा बचपन भी कुछ ऐसा ही था। उन दिनों स्कूल जाने की कोई उम्र मुकर्रर नहीं होती थी। बस जब घर वाले बच्चे की शरारतों से तंग पड़ जाते और मोहल्ले से शिकायत आने लगती तो बाप कान पकड़कर बच्चे को स्कूल ले जाता और उस्ताद के हवाले करते हुए कहता, काबू कीजिए इस शैतान को, बंदे का पुत्र बना दीजिए। फिर मुशफ़िक़ उस्ताद एक हाथ शफ़क़त से सर पर और दूसरा महारत से पसलियों पर फेरते और मेरिट का तयन उन्हीं असूलों पर किया जाता जिनके तहत ईद कुर्बान पर मंडी से कुर्बानी का बकरा ख़रीदा जाता है। यूँ प्राइमरी स्कूल से हड्डियाँ पसलियाँ सलामत लेकर हाई स्कूल में पहुँच पाने वाले बच्चों की तादाद 50% रह जाती। फिर हाई स्कूल में 6 फुट कद के पीटी मास्टर अल्लाह बख्श 7 फुट के मौला बख्श के ज़रिए अपने इस्तेहकाक का इस्तेमाल करते तो मयार तलीम मज़ीद बुलंद हो जाता, इतना बुलंद कि सिर्फ 10% होनहार ही मैट्रिक का इम्तहान पास कर पाते। हम भी उन खुश नसीबों में से थे जिन्होंने अपने तमाम जिस्मानी अज़ा की सलामती के साथ मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। कॉलेज जाने का ख्वाब इसलिए भी सुहाना लगता था कि सुन रखा था कि वहाँ 6 फुट का कोई अल्लाह बख्श और 7 फुट का मौला बख्श नहीं होता। कॉलेज जाते वक्त वालिद साहब ने नसीहत की कि वहाँ इल्मी और अदबी सरगर्मियों में तो ज़रूर हिस्सा लेना मगर सियासी सरगर्मियों से दूर रहना। वालदा ने फरमाया, बेटा सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाना। कॉलेज पहुँचे तो इल्मी और अदबी सरगर्मी तो कोई दिखाई ना दी, अलबत्ता हर तरफ सियासी ढोल बज रहे थे। एक बाखबर सीनियर ने कहा, तुम्हें अलादीन के चिराग को ढूंढना चाहिए। कुछ समझ ना आया और कम आएगी का एहसास मज़ीद बढ़ा। फरमान हुआ, प्रोफेसर अलादीन चिराग। अलादीन और चिराग के मुगालते में उलझे हुए कॉलेज के आखिरी कोने में आखिरी ब्लॉक पहुँचे तो एक छोटे से कमरे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा पाया, प्रोफेसर अलफुद्दीन चिराग, शुबा उर्दू। बंद बटनों की स्याह शेरवानी और सर पर कुंदने वाली तुर्की टोपी पहने वो एक हकीकी अलादीन लगे, मगर चिराग का कहीं नामो निशान नज़र ना आया। 15-20 तलबा इल्मी और अदबी मुशागल में हिस्सा लेने के लिए नाम लिखवाने खड़े थे। मैंने और ताहिर ने डिबेटिंग सोसाइटी के लिए अपने नाम लिखवाए। कैसर शेर व शायरी में दिलचस्पी रखता था, कुछ ने कॉलेज मैगज़ीन के लिए अपने नाम दिए। प्रोफेसर साहब ने सिगरेट की डब्बी से एक सिगरेट निकाला, उसे दूसरी खाली डब्बी में डाला और हमें थमाते हुए बोले, कैंटीन से सुलगा कर लाओ, माचिस नूल आया हूँ। देखना रास्ते में कश नहीं लगाना। कैंटीन चाचा ने सिगरेट सुलगाने के बाद लंबे लंबे 4-5 कश लगाए और फिर सिगरेट हमें वापस करते हुए बोला, ले जाइए, चिराग साहब को नहीं बताना कि मैंने कश लगाए थे। प्रोफेसर साहब ने सिगरेट को देखते ही हमें मशकूक नज़रों से घूरा, तुर्की टोपी झटके से उतार कर मेज़ पर रखी और गोया हुए, किसी के सिगरेट को मुँह लगाना गोया उसकी बीवी को मुंह मारने के बराबर होता है। ये खुली बात तहजीबी है। ये सिगरेट अब मेरे किसी काम का नहीं, आप उधर बैठकर इसके कश लगा सकते हो। उस वक़्त तक हमें इल्म नहीं था कि कश लगाने से सिगरेट कंवारी नहीं रहती। यूँ एक फैज़ बिल जबर हमें मुंतकिल हो गया। एक रोज़ खाली पीरियड में बहुत से तलबा बैठे इधर उधर की हाँक रहे थे। चिराग साहब दाखिल हुए, फरमाया, वक्त के ज़ियाँ से बेहतर है कि तुम लोग गैर नसाबी सरगर्मियाँ जारी रखा करो। कैसर, तुम अपना कलाम सुनाओ। कलाम सुनाया गया। शाहिद, तुम अपनी तकरीर सुनाओ। तकरीर सुनाई गई। ताहिर, तुम इधर आओ, अपनी तकरीर सुनाओ यौम आज़ादी वाली। क्लासरूम जलसागाह बन गई और तलबा आज़ादी छिन जाने के बाद भी जश्न आज़ादी पर तकारीर सुन रहे थे जो उनकी तबाह शैतानी पर बहुत नागवार गुजर रही थीं। मुकर्रर पूरी हुब्बुल वतनी से तारीख़ हिंद पर रोशनी डाल रहे थे।
انگریزوں کے ظلم گنوائے گئے، تحریک پاکستان کی قربانیوں کا تذکرہ ہوا، غلامی کی زنجیریں بس ٹوٹنے ہی والی تھیں کہ ایک شریر طالب علم نے اپنے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جو نہ لکھا جا سکتا ہے نہ یہاں سمجھایا جا سکتا ہے۔ ایسی ہی تقریبات کے لیے منہ دھیرے ملتان جانے کے لیے پروفیسر صاحب کی قیادت میں بس میں بیٹھے، بس روانہ ہوگی۔ کچھ مسافر اونگ رہے تھے، کچھ خاموش بیٹھے تھے۔ پروفیسر صاحب اچانک اٹھے اور مسافروں سے مخاطب ہوئے، دیکھیے برادران ملت، سفر تو یوں بھی کٹ ہی جائے گا، کیوں نہ ہم اپنے نو نہالوں سے کچھ اچھی اچھی باتیں سنیں؟ آپ اجازت دیتے ہیں؟ کیوں نہیں سنائیے۔ ایک دو مسافروں نے کہا، باقیوں سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ بس ایک جلسہ گاہ بن گئی۔ شعلہ بیاں مقررین نے جہاں بھرپور مشق کی، دھواں دار تقاریر کے درمیان تالیاں بھی بجائی جاتی رہیں، جن کی حسب ضرورت چراغ صاحب خود ہی ترغیب دیتے تھے۔ اس عالم جوش و خروش میں ملتان پہنچے۔ حسن اتفاق سے ہمارے کالج نے ٹرافی بھی جیت لی۔ چراغ صاحب کی خوشی دیدنی تھی۔ فرمایا، آج میرا قد گھنٹہ گھر جتنا بلند ہو گیا ہے، اور نوٹ کیا جائے یہ گھنٹہ گھر ملتان والا نہیں، فیصل آباد والا ہے، جو 1905 میں سر جیمز لائل نے بنوایا تھا، ایک ہونہار نے گرا لگائی۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس کہ تم کو چراغ سے صحبت نہیں رہی۔ تھینک یو۔ میرے خیال میں نے 20 سال کی عمر میں پہلا سفر امریکہ کا اختیار کیا تھا، اور صرف یورپ سے جا کے جہاز لیا تھا، باقی سارا جو تھا وہ کوئی لفٹ لی اور کچھ اس طرح کیا، وہ سارے کا سارا۔ سخت سردی کے دن تھے، مجھے یاد پڑتا ہے دسمبر کا مہینہ تھا، چنانچہ میں نے بے تحاشا کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو کابل میں ایک دوست کا ایڈریس تھا ہمارے پاس، اس نے کہا تھا وہاں جانا اور ملنا ان سے۔ میں گیا وہاں، اندر وہ ہیٹر تھا، اب مجھے سخت گرمی لگی، اتنا کچھ پہنا ہوا تھا۔ وہ جب چائے کے لیے کہنے اندر گیا ہے تو میں نے سب سے پہلے اوور کوٹ اتارا، اس کے بعد کوٹ اتارا، اس کے بعد 2 سویٹر اتارے، اس کے بعد ایک اور چیز تھی پتہ نہیں کہ وہ اتاری۔ واپس آیا تو کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں کہا جی کپڑے ہیں۔ کس کے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے ہیں۔ کہتے یہ سب آپ نے پہنے ہوئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے میں نہیں مانتا، ایک دو پھر پہن کے دیکھیں۔ اس سفر میں بڑے بڑے کمال کے لوگوں سے ہماری، ایک اور ہمارے تھے، وہ اس وقت میں ایران جا رہا تھا، تو ہمارے ایک جو ساتھی تھے، ہمیں کہا جی میں تو فارسی کا بڑا پرابلم ہوگا، یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہاں تو سارے فارسی بولتے ہیں، اور ہم نے جو فارسی پڑھی ہوئی ہے وہ اتنی ہے، اینت منگے دو رولر، یہ تو ناری بندوق ہے، اس کے آگے ہماری بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے جی آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میں جو آپ کے ساتھ ہوں، اردو تو میں آپ کی وجہ سے بولتا ہوں، میں ورنہ تو فارسی ہے۔ اب جب ہم تہران پہنچے تو اب ہم نے کہیں جانا تھا، ہم نے یہ نہ کہنا پوچھنا ہے کہ بھئی گاڑی ختم ہے، ہم نے کہا پروفیسر صاحب آپ کی فارسی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کہتے کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ایرانی کو روکا، اور جو فارسی بولی وہ یہ تھی، آگا عزیز جاؤ، اینی رکشا اویلیبل۔ میں 2 سال رہا امریکہ میں، میرے دوست گئے تھے سارے باری باری، تو وہاں کے نقشے بڑے کھینچے تھے، آج جیسی فلاں کلب گئے، اوتے ہے رسی، اوتے ہے رسی، تو کی ہوتے کی کر رہے پاکستان میں۔ اچھا میرے پاس تو پیسے نہیں تھے بالکل ہی، میں سفید پوش، وہ سارے کروڑپتیوں کے بیٹے، ماڈل ٹاؤن لاہور کی بات کر رہا ہوں میں۔ 12 میں نے منت ترلے کر کے کچھ بھائی جان سے پیسے لیے،
मुझे याद है टोटल 600 रुपये जमा हुए मेरे पास, और उसके $100 आए थे जी, 100 या 15 कितने मुझे याद नहीं सही था। और बाई रोड मैंने ये सारा सफ़र किया। लग्जमबर्ग से मैंने फिर फ्लाइट ली जो सबसे सस्ती, इतनी सस्ती थी कि उसका जो था ना पायलट, वो बाहर खड़े हो गया आवाज़ आ रहे और जो चलन तो मैंने उन्हें हाथी भी मारे चलो उसके बाद वो प्रवास किए उसने। तो बाहर वहाँ के याद आती बातें, और मेरे अब्बा जी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे मेरी कैसी बातें बर्दाश्त की अपनी मोहब्बत की वजह से। उनमें से एक ये भी थी मुझे बाहर जाने की इजाज़त। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि जब 1.5 साल बाद ही ना, मुझे अब्बा जी की याद तो बहुत आती थी, सारे दोस्त वहाँ टिक गए फॉरएवर। मैं तो नहीं रुकना यहाँ, मैं तो वापस चलूँगा। मैंने कोई 1.5 साल के बाद ना फिर उसी तरह सफर किया, यानी बसों के जरिए, कोचेस के जरिए, लिफ्ट लेके, ट्रेन में। इसका बड़ा मज़ा आया। मैं वो दिन भूल नहीं सकता अपने, वो जो जवानी के जो दिन थे। और घर मैंने अपने आने की इत्तला भी नहीं दी। मुझे याद है शाम का वक्त था जब मैं पहुंचा हूँ, तो मैंने बेल दी, तो अंदर से अब्बा जी निकले। उनका चेहरा मुझे आज तक याद है, खुशी से उनका चेहरा। और वहाँ से उन्होंने कहा, कुड़ियों शहजादा आ गया। और दूसरा काम उन्होंने ये किया, नाई को बुलाया, मेरे बाल सारे कटवा लंबे बाल लेके आया। तो वहाँ से मैं पूरा, तो ये बातें जो है मुझे याद आती है। तो दरमियान में मैं आपको सुनाऊंगी। बड़ी ही रॉयल सी पर्सनालिटी है आपकी, तालियों में हुसैन अहमद शिराजी साहब। कुछ अर्सा कबल एक खातून ने किसी सियासी लीडर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में केस दायर किया कि ये मेरा शौहर है लेकिन मुझे माहाना अखराजात के लिए रकम नहीं देता। अदालती कार्रवाई सुनिए। जज, पहले शादी साबित करें फिर अखराजात की बात होगी। वकील, जनाब इनके मोबाइल पैगामात मौजूद हैं, इन्होंने शादी की है और ये अपनी बेगम को हर रोज़ मैसेज करते हैं कि जानू मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जज, कोई भी ख़ावंद अपनी बीवी को ये मैसेज नहीं करता, केस खारिज किया जाता है। नो कैश नो ऐश, इसका एक छोटा सा चंद लाइनों का। हर धंधे के अपने असूल भी होते हैं। एक मॉडल गर्ल का अदालत में तलाक का मुकदमा चल रहा था। वकील ने कहा कि निकाह नामे में हक महर 2 लाख रुपए सिर्फ हिंसों में लिखा हुआ था, मैंने 1 सिफर बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। इस पर मॉडल गर्ल की माँ बोली, नाना वकील साहब, इस तरह की कम्युनिटी शरीफ लोग करते हैं, हम नहीं। ये एक और है पतली कमर। बाज़ शौकीन मिजाज बाबू कटी पतंग बन जाते हैं और हवा में इधर उधर झूलने के बाद किसी होटल, बाग या नाले में गिरे पड़े पाए जाते हैं। एक बाबू ने अपने साथी को किसी ऐसे ही मुकाम पर किसी खातून के साथ देखा तो अगले दिन इनके दरमियान बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। पहला, यार वो कल तुम्हारे साथ कौन थी? दूसरा, अरे भाई तुम्हारी भाभी थी। पहला, बकवास मत करो, बेशक मैंने फासले से देखा था लेकिन भाभीयों की इतनी पतली कमर नहीं होती। जापान और हम, किसी मजलूम शख्स ने अदालत में दुहाई दी कि जज साहब मैं इंसाफ लेने आया हूँ, तो मुंसिफ ने कहा कि बेटा थैला साथ लेके आए हो या नहीं? हुकूमत ने प्लास्टिक के शॉपर बंद कर दिए हैं। हमारे एक अजीज़ पुलिस में आला ओहदे पर फायज है, उन्होंने बताया कि खुदकुश हमला आवर वारदात से ऐन कबल गिरफ्तार हो गया।
तलाशी पर मालूम हुआ कि उसने खुदकुश जैकेट के साथ साथ क्रिकेट का फौलादी गार्ड भी पहना हुआ था। क्यों, आप सोचिए। और ये आखिरी है, हमारे मुल्क में एक नामवर वकील के घर डाका पड़ा और डाकू रात 2:30 बजे से सुबह 5 बजे तक मौजूद रहे। इस दौरान में साहिब खाना ने तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त मांगी तो मुसलमान लुटेरे ने सहमे हुए लहजे में फ़ैसला सुनाया, पढ़ लो लेकिन देखो बद्दुआ ना देना। इसी तरह एक और क़ज़ाकी की वारदात में डाकू ने जाए नमाज भी उठा लिया तो साहिब खाना गिड़गिड़ाया कि मुसल्ला तो रहने दो, मैंने फजर पढ़ ली है। राज़न ने जवाब दिया कि क्या तुम ही मुसलमान हो, हमने भी नमाज पढ़ ली है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले मेहमान मज़ानिगार डॉक्टर अकरम सईद शेखुपुरा से इनका ताल्लुक़ है, खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। उस्ताद हैं, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज शेखुपुरा से मुंसलिक रहे। आपकी पुरज़ोर तालियों में डॉक्टर अकरम सईद। मेरे मजमून का उनवान है यूनान का फिसागोरस ते पंजाब के जट। खातिनो रात रब झूठ ना बुलवाए, सारी उम्र किताब नाल इश्क करन दे बावजूद रियाजी की किताब तो डर ही आउंदा रहा। रियाजी की कोई किताब वेख के ही हुण भी ठंडी तरेली आ जाती। अल्लाह बशके अलजबरे बारे ते इबने निशा होरां गल नतारी सी कि तालिब इलमां नूं जबरी तौर पर फेल करन लई निसाब विच शामिल किया जाता है। रह गई जमैट्री तो मसला फिसागोरस, ये गल हजे नहीं नितरी। जेकर अज तुसी थोड़ा जिहा मेरे नाल तावन करो तो यदा भी कट्टी कट्टा कट लेने। साढ़े लिए तो फिसागोरस मसला सही, पर सुनिया है कि अपने पिंड यूनान में बड़ा पॉपूलर है। आखते हैं कि एक बार यूनान में सालाना खेड़ा हो रही सन, सारे लोग स्टेडियम में जमा सन कि एक संडे वर्गा पहलवान माइलो अपने मोढियां उत्ते एक जवान जींदा जागदा संडा चुक के स्टेडियम इंज दाखिल होया कि स्टेडियम के संडे नूं अपने सिर तो घुमा रहा। ये मंजर वेख के लोगों दियां अखां खुलियां रह गई। और बिटर ये मंजर तक रहे सन। माइलो होरां लोगों को मुखातब करके पूछा, ओ यूनान वालिओ दसो हुण सब नालों ताकतवर कौन है? लोगों यकदम होकर आख्या फिसागोरस। माइलो आख्या थोड़ा बेड़ा गर्क, वो तो हड्डियां की मुठ है, वो पिंडे उत्ते तो गोशत नां की शाही कोई नहीं। लोग आख्या असी फिर भी उन्होंने ही ताकतवर मिथते हैं। लो जो सुन जो गिन जो गल थोड़ी नितर गई। यानी साबित ये होया कि लोगों लिए कोई जिड्डा वड्डा मसला पैदा करे वो उन्ना ही वड्डा ताकतवर है। टीवी न्यूज़ एंकर माँ पारा सफदर पिछले दिन आई भी हुई थी, उसका एक खाका मैंने लिखा था तो उसमें से एक इक़्तिबास। आजकल लंदन होती है जी, आई हुई थी पिछले दिनों। तो मैंने नहीं पढ़ा। जी माँ पारा शाह पारा। हमारा ताल्लुक़ जदीदो कदीम के दौराहे में फंसी उस नस्ल से है कि रेडियो जिनका दोस्त, उस्ताद, खिलौना, बहलावा, मशीर, महबूब सब कुछ हुआ करता था। हमारा ताल्लुक़ उस नस्ल से भी है जिन्होंने अपने ज़माने की ख़बरी हसीना यानी माँ पारा ज़ैदी को अपनी आँखों से माँ पारा सफदर बनते ना सिर्फ देखा बल्कि बर्दाश्त भी किया। माँ पारा से हमारा इब्तदाई तारुफ उस ज़माने में हुआ जब कोई खूबसूरत चेहरा देख के नसीम हिजाज़ी के नावलों की हीरोइन की तरह दिल में खुशगवार धड़कनों का
अमल शुरू हो चुका था। 80 की दहाई में जब टीवी ने आवाज़ को तस्वीर का कालब अता किया तो ड्रामों में शहनाज शेख, मरीना खान, लैला ज़ुबैरी, निशात फातिमा, रूही बानो और फजीला काजी जैसी ज़मीनी बिजलियाँ ही क्या कम थीं कि 9 बजे का ख़बरनामा भी हम नौआमूज़ों पे क़यामत बन के टूटा। हम नई नस्ल के कितने ही नौजवान थे कि ये पहली ही नज़र में जिनकी पुतलियों में घुस के बैठ गई। उस पर सितम ये कि हमारी जुमला कल्बी और तलबी कैफियत से बेखबर ये बाखबर ख़ातून चेहरे पे संजीदगी और सर पे सूफियाना रंग का दुपट्टा ओढ़े खालिद हमीद याजर लोधी के पहलू में बैठी इतने पक्के मुंह और बेनियाजी से कच्ची कच्ची खबरें पढ़ रही होती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिर्ज़ा गालिब ने ऐसी ही किसी सूरत हाल में कहा था, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। जरा खामोशी। शेखुपुरा के एक छोटे से गांव से रेडियो हमारी जज्बाती तस्कीन का वाहद ज़रिया था। ड्रामे, गीत, गज़लें, फ़िल्मी प्रोग्राम, क्रिकेट कमेंट्री हमारा रात दिन का एजेंडा था। इसमें ख़बरों का इजाफा महज इसके नाम की वजह से हुआ। 80 की दहाई ताज़ा फूट रही थी, यानी हमें भी 16वां आन लगा था, यानी जज्बात के नन्हे नन्हे पर निकलना शुरू हो चुके थे। शदीद मुताले की आदत ने अल्फाज और अशार पे कान खड़े होना सिखा दिया था। एक दिन जैसे ही रेडियो की शशवंती टूं टूं के बाद ये रेडियो पाकिस्तान है, अब आप माहपारा ज़ैदी से ख़बरें सुनिए कि मुतरन्नम घंटियाँ बजीं। नाम खूबसूरत, नया और चौंका देने वाला था। आवाज़ दिलकश और सुरीली, हमारी क्या मजाल के ना सुनते। लुग़त तो दस्तयाब न थी, एक नक चढ़े नीम पड़े चचा नुमा शख्स से भागम भाग माँ पारा के मानी पूछे चांद का टुकड़ा। उसने हमारे कानों में रस घोला, धड़कनों में हलचल सी हुई। शाम को ऑल इंडिया रेडियो पे किशोर कुमार ने जलती पे तेल का काम किया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। फिर क्या था, हमें पाकिस्तान के हालात से दिलचस्पी होने लगी। ख़ास ख़बरों से लेके मौसम का हाल तक मज़ेदार लगने लगे। कुछ अरसे के बाद मामू जान सानियों का चौपाया यानी 4 रंगों वाला टीवी लेके आए, जिसकी स्क्रीन के सामने खिड़की या शटर लगा होता था। जब गांव के लोगों को इल्म हुआ कि इस नए रेडियो में आवाज़ के साथ तस्वीर भी आती है, तो ये मौजज़ा देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। शाम से पहले ही चौंतरे पे पानी तरौंक कर टीवी सेन में रख दिया जाता। 8 बजे वाला ड्रामा देख के अक्सर टीवी बंद हो जाता कि मामू समझते थे ख़बरें तो झूठ का पुलंदा होती हैं। एक रोज़ मामू से नज़र बचा के 9 बजे सामने पड़े टीवी की खिड़की खोली तो किशोर कुमार का कानों से सुना हुआ सच आँखों के सामने धरा था। ताज़ा मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ना शुरू किया था। उस जालिम ने एक जगह लिखा है कि जब कोई तरादार हसीना अचानक सामने आ जाए तो दिल के अंदर टिक टिक होने लगती है, और अगर वो हसीना बांकी नार भी हो तो दिल टटों करने लगता है। लेकिन इतना जानते हैं कि 80 और 90 की दहाई के कितने ही नौजवान फैज़ अहमद फैज़ की नज़म रकीब से सफदर हमदानी को ज़हन में रख के पढ़ा करते थे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। क्या ख्याल है हम एक दफ़ा फिर नोहेज़ साहब को सुन लें? आपकी पुरजोर तालियों में गुले नोहेज़ अख्तर साहब। बस दो बातें ऐसे सुना देता हूँ ताकि मेहमानों की तरफ आएँ। मिल गई चाय सबको, हौसला हो। हमारे एक दोस्त थे और उनको बिनिश, उनको हर चीज़ जो पसंद होती थी उसके साथ वो दी लगाते थे। अब आप गौर करेंगे तो समझ आएगी आपको बात। मसलन उनकी पसंदीदा फिल्म थी दी मौला जट, दी गुज्जर दा खड़ाक, दी टाइटैनिक। इसी तरह उनको जो खाने पसंद थे उनके साथ भी वो दी लगा देते थे। वैसे तो दा होता है लेकिन हमारे पंजाबी अमूमन दी बोलते हैं। तो उनको जो खाने पसंद थे उसके नाम के साथ भी वो दी लगाते थे। अलिया बासा, दी आलू कीमा,
दी करेले गोश्त मुझे बड़े पसंद हैं, दी दाल माश, दी भिंडियाँ। तो जब उनकी शादी हुई, मैं फिर कह रहा हूँ गौर कीजिएगा, जब उनकी शादी हुई तो आपको पता है शादी जब होती है तो ससुराल वालों की तरफ से कम से कम शुरू में बड़ा प्यार मिलता है। तो उन्होंने दोस्तों में कहना शुरू कर दिया दी ससुराल, ये घड़ी मुझे दी ससुराल की तरफ से आई है, ये शर्ट मुझे दी ससुराल ने दी है, दी ससुराल की क्या बात है, दी ससुराल दी ससुराल। अब उनकी शादी को हो गया 20 साल, ससुराल के नाम के साथ वो दी अब भी लगाते हैं, लेकिन अब बाद में लगाते हैं। और जो वाकया इन्होंने कहा मुझे अभी कि वो भी सुना दें, मैंने कहा चलो इतनी दफ़ा सुनाया हुआ है तो आपको सुना दें। आप में से अक्सर ने वो सुना हुआ होगा। हम इशरे में रहते थे, दोस्त थे हम, बड़ी पुरानी कोई 40 साल तो खैर नहीं, 30 साल पुरानी बात है। तो पैसे पूसे होते नहीं थे, तो एक दिन तय पाया कि हम सारे कोई एडवेंचर करें। तो दोस्तों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम एक दोस्त ने कहा झंग के पास कोई उनका डेरा है, वहाँ चलें, एक रात वहाँ गुजारते हैं, बस यही एडवेंचर हो सकता है। तो हम 8-10 दोस्त बस की छत पे चढ़ के वहाँ पहुँचे झंग। तो वो काफ़ी दूर उनका डेरा था, वहाँ पे एक केयर टेकर थे बाबा जी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे ऊपर बहुत सारी गर्द पड़ी हुई थी। तो उन्होंने हमसे कहा बाबा जी ने कि आप पहले नहाना चाहेंगे या आप खाना लगाऊं? तो हमने कहा जी पहले नहा लेते हैं क्योंकि मिट्टी बड़ी पड़ी हुई है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि कहाँ नहाने का इंतज़ाम करा, उन्होंने कहा जी उस तरफ है वाशरूम। तो जब उसमें हम गए तो गांव का माहौल था, बड़ा बड़ा वाशरूम। तो वहाँ कोई देखा मैंने 40-50 साबुन पड़े हुए हैं, खुले हुए हैं, यानी ऐसा लगता था एक दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा जी ये हम यूज़ कर सकते हैं कोई इनमें से साबुन? उन्होंने कहा जी जो आपको पसंद है आप उससे नहा लें। फिर जिसको जो साबुन पसंद था उसने उससे नहा लिया। तो जब हम नहा धो के बैठे, साथ नहर थी, उन्होंने खाना लगाया, हमने लुकमा हाथ में पकड़ा, पहली बुरकी लान लगे हम। मैंने कहा बाबा जी ये इतने साबुन आपने क्यों रखे हुए हैं, लक्स, डव, कैपरी, तिब्बत, फलां फलां खुले हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं, शौक है आपका? कहने लगे नहीं पुत्र शौक नहीं, जिथे मुर्दा नवाण जाना वो कहते ने साबन तू लै जा। बस फिर नहर पास थी, रोटी छोड़ी और हमने कहा पहले गुसल कर। शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब हर दफ़ा दोस्तों को घेर घार कर इस तरह की तकरीब मुनक्कद करते हैं, इसके बावजूद उनका एक गुनाह जो है वो माफ़ नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा जी कि ननकाना साहब ने हमने रखनी है एक मिजाक की तकरीब, और वहाँ के जो जागीरदार हैं वो हमारे मेज़बान होंगे। चुनांचे ये सब दोस्त साथ ही थे। वहाँ हम बैठ गए और हमने देखा कि अमरूदों का मौसम था, तो वो अमरूदों की पेटियाँ 300-400 के करीब ना पड़ी हुई सामने। अब हम उम्मीद कर रहे थे कि यार और कुछ नहीं, अमरूद से खवा देगा कि नहीं, लेकिन उसने जी अमरूद की भी सुलह नहीं मारी। बिलाकर मैंने कहा चौधरी साहब अमरूद कैसे ने? बड़े अच्छे गए जी। मैं कहा ताड़ी अच्छे तो की मुराद है, मिठे होंगे जो है। मैंने कहा अच्छा जी आप कहते हैं तो फिर होते, अच्छा ज़रा दिखाएं तो सही। यकीन करें कसमियाँ कह रहा हूँ, उसने एक अमरूद निकाला उन पेटियों में से। वो फिर हम जो 8-10 मिजाज निकाल गए आपस में, फिर हमने मुनसिफाना तौर पर उसकी तकसीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।